آج تو پارٹی ہے، پھر آج تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اور تو اور اس پارٹی میں میل ٹیچرز بھی نہیں ہے۔ نرگس کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ کانپتے ہوئے اسے جواب دیا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، پر سچائی تو کچھ اور ہی تھی۔ آتے جاتے مجھ سے یہی سوال کیے جاتے، کسی کو لگتا کہ شاید میں اتنی خوبصورت ہوں، جبکہ نرگس اور باقی ٹیچرز میری تعریف کرتی کہ تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، تمہارا چہرہ بھی حسین ہوگا، پھر یہ پردہ۔ یہ سارے سوال مجھے میرے ماضی میں دھکیل دیتے، جسے میں ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھلانا چاہتی تھی۔ میرا نام ماہنور ہے۔ میں اپنے نام کی طرح بالکل چاند جیسی حسین تھی۔ چھوٹے سے مکان میں اپنے اماں ابا اور 3 بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم 4 بہنیں ابا پر بوجھ کی طرح تھی۔ میں بھی جان گئی تھی کہ میرا رشتہ آنے کی دیر ہے، پھر ابا نے میرا رشتہ بنا کسی چھان بین کے پکا کر لینا ہے، کیونکہ ہم ساری بہنیں بلا کے حسین تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرا رشتہ ہمارے محلے کے ولید کا آیا تھا، جو کہ کام چور اور نہایت باش تھا۔ میں جب بھی کالج کے لیے نکلتی تو وہ محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوتا۔ مجھے اس سے نفرت تھی، پر قسمت کی ایسی کایا پلٹی کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اماں نے ابا کو سمجھایا کہ ولید اچھا لڑکا نہیں ہے، پر ابا آگ بگولا ہو گئے۔ یوں ولید سے میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اب وہ مجھ پر پابندی لگانے لگا۔ میں نے کالج میں ٹاپ کیا تھا، یونیورسٹی سے پڑھائی کی آفر آئی تو ابا نے بھی پڑھائی کی اجازت دے دی، پر ولید نے مجھے دھمکی دی۔ وہ مجھ پر طرح طرح کا شک کرتا، وہ ہمیشہ مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ اسے لگتا کہ شاید میں پڑھائی کے بہانے یونیورسٹی میں لڑکوں سے میل جول بڑھا لوں گی، یا شاید وہ اپنا احساس کمتری چھپانے کے لیے مجھ پر ایسے الفاظ سے حملہ کرتا تھا۔ وہ بار بار کہتا کہ اتنی تعلیم کی کیا ضرورت ہے، سنبھالنا تو تمہیں گھر ہی ہے، تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی اماں میرے حسن اور خوبصورتی پر وارے صدقے جاتی۔ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یوں بیٹھے بٹھائے ان کو اپنے نکھٹو بیٹے کے لیے ایسی چاند سی دلہن مل جائے گی۔ میں اس گلی کے نکڑ میں کھڑے ہو کر آتے جاتے خود پر کسے جانے والے فکروں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی۔ اس کے نالائق دوست بھی اسے خوب بڑھاوا دیتے، اور اسے یہ شرم محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کے راستے میں اپنے آوارہ دوستوں سے مل کر کھڑا ہوتا ہے۔ میں گھر پہنچتی اور اماں کے سامنے رو پڑتی۔ اب میں گھر سے مکمل پردہ کر کے نکلتی اور یونیورسٹی میں جا کر بھی عبایا ہی پہن کر رکھتی۔ شروع میں مجھے وہاں کے لڑکے لڑکیوں نے بھی خوب تنگ کیا اور مجھے بہن جی جیسے خطاب ملے، لیکن میں ثابت قدم رہی اور میں وہاں پڑھنے گئی تھی۔ مجھے ارد گرد کے ماحول سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں اور اچھے گھرانوں کے لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو اور اس کا طرز عمل جیت لیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مجھے پریشان کرنے کے لیے میرے پردے کو نشانہ بناتے، وہ سبھی آہستہ آہستہ میری عزت کرنے لگے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اپنے محلے میں کھڑے اس منگیتر کی وجہ سے میرا سکون غارت ہو جاتا۔ اماں نے ابا سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ابا نے سختی سے کہہ دیا کہ وہ مجھے پڑھائی کی اجازت دے چکے ہیں، مگر من مانی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، اور میری شادی ہر صورت ولید کے ساتھ ہی ہوگی۔ ولید کی ماں نے ابا کو شیشے میں اتار رکھا تھا۔ وہ ہر وقت ان کے سامنے اس طرح پیش آتی کہ ولید کی ہر غلطی ابا کو بچپنا لگتا۔ اس روز یونیورسٹی سے واپسی پر تیز بارش ہو گئی۔ میں بس سٹاپ پر کھڑی اپنے روٹ کی بس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شاید بارش کی وجہ سے بس آ نہیں رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے ایک گاڑی رکی۔ اس میں میرا کلاس فیلو شہزیب اور اس کی سسٹر تھے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ وہ مجھے ڈراپ کر دیں گے، لیکن میرے ذہن میں ولید کا خوف بیٹھا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ ہر طرف ویرانی چھا گئی، اور ساتھ میں بجلی بھی بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ شہزیب ایک اچھی فیملی کا لڑکا تھا اور نہایت سلجھے ہوئے دماغ کا تھا۔ اس نے گاڑی سے باہر نکل کر مجھے کہا، ماہنور، ضد مت کریں، موسم بہت خراب ہوتا جا رہا ہے اور شہر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔
बारिश की वजह से शाम भी जल्दी हो गई है। मुझ पर भरोसा करें, मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम हैं। जैसे मेरी अपनी बहन है, मेरे साथ चलें, मैं आपको घर छोड़ाऊंगा। उसके पुरखलूस अंदाज ने और मौसम के तेवरों ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं बुरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन अबाई की वजह से शर्मिंदगी से बच गई थी। बारिश की वजह से गली के अंदर पानी खड़ा था और हमारी गली भी खासी तंग थी। मैंने शाहजेब से कहकर गाड़ी बाहर ही रुकवा दी और उससे कहा कि आप जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन वो जिद करने लगा कि वो मुझे घर तक ही छोड़ कर जाएगा। मैं उसे ये भी नहीं बता सकती थी कि मेरी मंगनी एक नाकारा इंसान से हो चुकी है, जिसने मेरा जीना आराम कर रखा है और वो मेरे रास्ते में ही खड़ा मिलता है। वो मेरे साथ साथ चल रहा था। अचानक मेरी नजर गली में खड़े वलीद पर पड़ी, जो शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। शाहजेब को मेरे साथ देखकर उसके चेहरे पर कई रंग गुजर गए। उसके दोस्तों ने भी उससे कुछ कहा था कि वो लोगों का ख्याल किए बिना मेरे और शाहजेब की तरफ दौड़कर चला आया। उसने निहायत बदतमीजी से मुझे कहा कि तुमसे कितनी बार कहा है कि पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाओ, लेकिन हर बार तुम कोई नया बहाना कर देती हो। ये है तुम्हारी पढ़ाई कि अब तुम्हारे आशिक तुमको छोड़ने के लिए घर तक पहुंच गए। शाहजेब उसकी बात सुनकर गुस्से से भड़क उठा। उसने वलीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वलीद के दोस्त ये देखकर शाहजेब पर टूट पड़े, लेकिन कहाँ ये गली मोहल्ले के आवारा लड़के और कहाँ शाहजेब जैसा बॉडी बिल्डर लड़का। उसने थोड़ी देर में सबको धूल चटा दी। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले की औरतें और मर्द भी बाहर निकल आए। बारिश की वजह से मेरे अब्बा भी जल्दी घर आ गए थे, यूं वो भी वहां पहुंच गए। शाहजेब का हुलिया देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके साथ बदतमीजी कर सकता। इतनी देर में हुरैन भी गाड़ी से उतरकर वहां पहुंच गई। अब्बा ने जब मुझसे पूछा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन शाहजेब और उसकी बहन ने अब्बा को सब कुछ बता दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस दिन अब्बा ने मुझे बड़ी नरमी से मुखातिब किया और उन दोनों बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करके उन्हें भेज दिया। वलीद ने उठकर अब्बा के सामने अपनी पोजीशन साफ करने के लिए उल्टी सीधी बकवास करने की कोशिश की तो पहली बार अब्बा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और गुस्से से उसे कहा, खबरदार, जो आइंदा मेरी बेटी का रास्ता रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा ही दिमाग खराब था कि तुम जैसे नौजवान को अपनी फूलों जैसी बेटी का रिश्ता दिया। वलीद हैरत से अब्बा की तरफ देख रहा था। वलीद की माँ ने जब बात अपने हाथ से जाते देखी तो उसने हस्बे आदत अब्बा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब्बा ने भी उसे सख्ती से झाड़ दिया। मेरी बहनें भी दरवाजे में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मैं फौरन घर के अंदर आ गई और अम्मा से लिपट कर रोने लगी। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप होने का कहा तो जिंदगी में पहली बार मैं अब्बा के गले लग गई। अब्बा भी रो रहे थे और कहने लगे, मैं ही पागल था जो बेटा न होने के गम में अपनी बेटियों से बिल्कुल लाताल्लुक हो गया था। तुम्हारे जैसी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती। आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी जाओ, दिल लगाकर पढ़ाई करो, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें परेशान करता है। खुशी के मारे हम सब बहनें एक दूसरे की तरफ देखकर रोने लगी। 2 रोज तक मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। मुझे खौफ था कि शाहजेब ने सबको बता दिया होगा, लेकिन फिर इम्तिहानात सर पर थे, इसलिए जाना पड़ा। शाहजेब को देखकर कोई खास तासुर उसने नहीं दिया, बल्कि वो हल्के फुल्के अंदाज में सलाम करके वहां से चल दिया। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। उसने मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। यूनिवर्सिटी से वापसी पर वलीद मेरे साथ साथ चलने लगा और माफी मांगने लगा। कहने लगा, अपने दोस्तों की बातों में आकर मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब वादा करता हूँ ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैंने गुस्से से उसे अपने रास्ते में आने से मना कर दिया तो वो भी गुस्से से धमकी देता चला गया और कहने लगा, देखना, तुम्हें एक रोज अपने इस रवैये पर अफसोस होगा। अगले दिन कई रोज सुकून से गुजर गए। अब्बा वलीद की मंगनी की अंगूठी वापस कर चुके थे। उसकी माँ ने भी पूरे मोहल्ले में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, लेकिन अब्बा इत्मीनान से बैठे थे। औरतों ने बताया कि वलीद दूसरे शहर चला गया है। अब मैंने सुकून का सांस लिया। इस बात को 1 महीना गुजर चुका था और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि
वो अपना बदला लेने के लिए इस हद तक चला जाएगा। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी की बस से उतरी और पैदल चलकर अपनी गली की तरफ जाने लगी, अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार मेरे करीब से गुजरे। उन्होंने चलते चलते मेरे ऊपर कोई चीज फेंकी। पल भर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मेरी चीखों ने पूरा आसमान सर पर उठा लिया। मुझ पर एसिड अटैक हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने मेरे घर पर इतला की। मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कई रोज तक इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रहने के बाद जब मैं घर वापस आई तो खूबसूरत महानूर के बजाय आधे चेहरे वाली महानूर बन चुकी थी। तमाम उम्र के लिए मेरा चेहरा जल चुका था। न जाने कैसे मेरी आंखें सलामत रह गई। मेरे चेहरे पर जलने के निशान इस कदर ज्यादा थे कि बच्चे भी मुझे देखकर डर जाते। वो वक्त मेरे लिए बहुत बुरा गुजरा। मेरे यूनिवर्सिटी के साथियों को भी इस बात का पता लग चुका था। मेरे टीचर्स और दोस्त भी मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए। मैं जानती थी कि यह हमला वलीद ने किया है, लेकिन मेरे पास उसको गुनहगार साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वो मोहल्ले वालों की नजर में दूसरे शहर जा चुका था। मैं हर वक्त पर्दे में रहने लगी। मेरे अब्बा एकदम से जैसे बूढ़े हो गए थे। मैंने अब्बा को भी बता दिया कि वो वलीद ही था। वो उस रोज फूट फूट कर रोए थे। उनकी छोटी सी गलती ने उनकी बेटी को उम्र भर का रोक दिया था। मैं मजीद अपनी तालीम जारी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरे क्लास फेलोज और टीचर्स ने मिलकर इस बात के लिए तैयार किया। यूं मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली। मोहल्ले में सभी को मेरे साथ बीते हादसे का पता था, लेकिन फिर भी वो औरतें तन से बाज नहीं आती। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि किसी नाकाम आशिक ने मेरे साथ ये किया है। वलीद मुस्तकिल अपने घर से गायब था। लोगों की बातों से तंग आकर अब्बा ने वो मकान बेच डाला और हमें लेकर दूसरे शहर मुंतकिल हो गए। मैं सबसे बड़ी थी, लेकिन अब मेरा रिश्ता होना नामुमकिन था। मैंने अब्बा को समझाया कि अब वो छोटी बहनों की शादी कर दे। इस बार अब्बा ने बहुत सोच समझकर लोग चुने। एक एक करके मेरी सारी बहनें बहुत अच्छे घरों में ब्याही गईं। मुझे एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई थी, जो इस इलाके में काफी साल से कायम था। मैं हर वक्त पर्दे में रहती, तो किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा था। मेरे अखलाक और मेरी जहानत को देखकर स्कूल में काम करने वाले मेल स्टाफ से बहुत से लोगों ने मेरी तरफ पेशकदमी की, लेकिन मैंने उन्हें सहूलत से इनकार कर दिया। मेरी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी थी और मैंने अपने जहन से शादी का ख्याल बिल्कुल निकाल दिया। फीमेल स्टाफ में कुछ लड़कियों ने कोशिश की कि वो मेरी करीबी दोस्त बनकर मेरा चेहरा देखें, लेकिन मैं हर बार उन्हें कुछ न कुछ बहाना करके खुद से दूर रखने में कामयाब हो जाती। मैं माजी में खोई हुई थी कि नरगिस ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी तरफ मुतवज्जह किया और कहने लगी, मानूर, कल को मेरी मंगनी है, टीचर्स आएंगी, तुम भी जरूर आना। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरी शुरू दिन से आदत है कि मैं किसी भी फंक्शन में नहीं जाती, चाहे वो खानदान का ही क्यों न हो। मेरी तरफ से माज़रत कबूल करो। मैं दुआ गो होंगी कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुबारक साबित हो। मेरी बात सुनकर नरगिस और दूसरी टीचर्स हैरान रह गई और हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। वो मुझसे काफी नाराज थी। मैं उठकर अपनी क्लास लेने चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि काम की जगह पर किसी भी सूरत में मेरी शक्ल डिस्कस की जाए और यहाँ से भी मुझे जाना पड़े। कई रोज बाद नरगिस मिठाई लेकर स्कूल पहुंची। वो सभी दोस्तों को मिठाई खिला रही थी। मेरे पास भी पहुंची। उसने मिठाई मेरे सामने करते हुए कहा, तुम तो बेवफा निकली, मेरी खुशी में शरीक नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती हूँ, इसीलिए आज अपने हाथों से तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊंगी। मैं कुछ कह ही नहीं पाई थी कि उसने अचानक मिठाई उठाकर मेरा नकाब चेहरे से हटा दिया। इस सूरत हाल के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने फौरन दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। वो सभी टीचर्स जो उस वक्त हम दोनों को देख रही थी, उनके मुंह से एक चीख निकली। नरगिस भी सदमे से चुप खड़ी रह गई। वो अब शर्मिंदा सी नजर आ रही थी। मैं रोते हुए वहां से उठकर वॉशरूम में गई। पूरे स्टाफ रूम में तरह तरह की बातें होने लगी। सभी टीचर्स परेशान थी। फिर एक दूसरे से कहने लगी, तभी तो बेचारी हर वक्त अपने मुंह को नकाब में छुपा कर रखती है, क्योंकि इसका मुंह देखने के लायक ही नहीं। दूसरे टीचर कहने लगी, खुदा की पनाह, किस कदर खौफनाक चेहरा है।
मुझे तो देख कर ही डर लग रहा है। एक टीचर ने कहा, यार ये घर में भी अपना चेहरा छुपा कर रखती होगी। दूसरी टीचर कहने लगी, अगर छुपा कर नहीं रखती होगी तो इसके घर वालों का क्या हाल होता होगा। सबसे आखिर में जहरीला जुमला बोलने वाली नरगिस थी। उफ अल्लाह, मैं किस कदर भयानक चेहरे के साथ दोस्ती कर बैठी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मेरे हाथ पांव शिद्दत से कांप रहे थे। मुझे शायद पैनिक अटैक हुआ था, जो मुझे अक्सर पहले भी होता। मुझे लगा जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ना चाहते हुए भी मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला और वहां से बाहर भागना चाहती थी। खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, लेकिन एकदम से मुझे बुरी तरह का चक्कर आया। मैं गिरकर बेहोश हो गई। टीचर्स खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। किसी ने भी मुझे सहारा देने की कोशिश नहीं की। स्कूल में काम करने वाली मुलाजमा ने जाकर प्रिंसिपल को बताया कि महानूर बेहोश हो गई है। वो फौरन मेरी मदद करने के लिए भागी। तमाम टीचर्स मेरे इर्द गिर्द जमा थी, लेकिन किसी ने भी मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। प्रिंसिपल ने उनके चेहरे की तरफ गुस्से से देखा। जैसे ही उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, वो भी सदमे से हैरान रह गए। फिर मुलाजमा ने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि मैं कहाँ हूँ। जैसे ही मेरी नजर प्रिंसिपल मैडम के चेहरे पर पड़ी तो मुझे एकदम से सब याद आ गया। मैं फौरन उठकर बैठ गई और मैंने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए। वो उठकर मेरे पास आ गई और मुझे तसल्ली देने लगी। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा, मानूर आप तो बहुत बहादुर हैं, प्लीज ऐसे खुद को हल्कान मत करें। मैं अपने सारे स्टाफ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने तकलीफ से उन्हें कहा, मैडम आप क्यों माफी मांग रही हैं? ये तो मेरी किस्मत का खेल है। मेरा चेहरा भयानक है ना, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? वो अफसोस के साथ मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे घर भेज दें। प्रिंसिपल खुद ही मुझे घर छोड़ने के लिए आई। वो मुझे अकेला नहीं भेजना चाहती थी। मैं घर पहुंचते ही अम्मा से लिपट कर रो पड़ी। अम्मा भी मुझे ऐसे देखकर परेशान हो गई। प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि स्कूल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। प्रिंसिपल के जाने के बाद मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मेरा माजी 4 साल बाद दोबारा मेरे सामने खड़ा हो गया। अम्मा बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया था कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। मैं तकिए पर मुंह रखे लेटी थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा है। मुझे लगा शायद अम्मा दरवाजे का लॉक खोलकर कमरे में आ गई हैं, क्योंकि मुझे कमरे में बंद हुए 3 रोज गुजर चुके थे। मैं एकदम उनकी गोद में सर रखकर उनसे लिपट गई। मैं बुरी तरह से रो रही थी। काफी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ये अम्मा की गिरफ्त नहीं है, बल्कि किसी ने मुझे बहुत मोहब्बत के साथ खुद में भींच रखा है और ये आज मर्दाना है। ये महसूस करते ही मैंने उस वजूद को बुरी तरह से खुद से अलग किया। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो कोई अजनबी मर्द था। मैंने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा तो वो अंदर से लॉक था। मैंने डरते डरते उस अजनबी से पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आ गए? वो मुस्कुराया था। मुझे यूं लगा जैसे हर तरफ रोशनी फैल गई। वो निहायत ही खूबसूरत नौजवान था, इतना खूबसूरत कि किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा। मुझे हैरान देखकर वो कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं एक जिन ज़ादा हूँ। मैं तुम्हें जब देखता हूँ मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे सारे गम समेट लो। ऐसे मत रोया करो। अगर तुम कहो तो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वालों को मैं ऐसी भयानक सजा दे सकता हूँ कि वो दोबारा किसी की दिल आजारी ना करे। वो इतने प्यार से बात कर रहा था कि मैं हैरान रह गई। मैं तो सोचती थी कि जिन्नात बहुत ही खौफनाक सूरत के होते हैं, मगर ये क्या, वो इतना खूबसूरत था कि पलक झपकाने को दिल नहीं कर रहा था। उसने नरमी के साथ मेरे आंसू साफ किए। मैंने उसके हाथों को पीछे किया और सिमट कर बैठ गई। वो इस बात पर मुस्कुराने लगा। उसने अपना हाथ आगे फैलाया और पूछने लगा, मुझसे दोस्ती करोगी?
मैं वादा करता हूँ कि दुनिया की तमाम खुशियों को तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर करूंगा। मैंने कुछ सोचकर उसके बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं उस तन्हाई के अजाब से आजिज आ चुकी थी। मैंने उससे टूटे हुए लहजे में पूछा, मेरी खराब शक्ल के बावजूद भी तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? वो बच्चों की तरह हंस पड़ा और कहने लगा, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी ये काबिले रहम हालत भी वलीद की वजह से है। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें फिर से सब कुछ वापस मिल जाएगा। मैंने जब उससे अपना नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुबान बताया। वो बहुत देर तक मुझसे बातें करता रहा और मुझसे बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन अपने माँ बाप का नहीं सोचा था, जो पिछले 3 दिन से शदीद दुख और अजियत में मुब्तला थे, जो अपनी जवान औलाद को अपनी आंखों के सामने इस तरह देखने से उनके बूढ़े दिलों पर क्या बीत रही थी। मैंने सुबान का शुक्रिया अदा किया। उसकी वजह से मेरा खोया हुआ एतमाद फिर से जिंदा हो गया था। सुबान ने मुझे खूबसूरत मास्क तोहफे में दिया। उसने कहा, अब तुम्हें अपना चेहरा नकाब में छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इसे लगाओ और खुलकर अपनी जिंदगी जियो। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो उसे उसी की जुबान में जवाब दो। यह दुनिया सिर्फ 2 जुबान समझती है, मतलब की और ताकत की। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकले। अब्बा अभी तक दुकान से वापस नहीं पहुंचे थे। अम्मा घर के कामों में मसरूफ थी। मुझे देखकर अम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो भागकर मेरी तरफ आ गई। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे गले लगाया और कहने लगी, बेटा शुक्र है तुम अपने कमरे से बाहर निकले हो। तुम्हारे अब्बा बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें जबरदस्ती दुकान पर भेजा है। घर रहते तो मुसलसल खुद को कोस रहे थे कि काश मैं अपनी फूल सी बच्ची का रिश्ता वलीद जैसे से ना किया होता तो आज उसकी जिंदगी यूं बर्बाद न होती। अब वो परेशान हरगिज नहीं हूँ। अब मैं हर किसी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही मुझ में कोई ऐब है। उस जालिम ने जो मेरे साथ किया, मुझे खुदा पर यकीन है कि उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे अब लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं। अम्मा ने इतने रोज बाद मुझे पुरानी हालत में देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने अम्मा के गले में बाहें डाल दी और कहा, प्यारी अम्मा प्लीज कुछ खाने को बना दे, बहुत भूख लगी है। अम्मा ये सुनकर खुश हो गई। मैंने अब्बा को भी दुकान पर कॉल करके जल्दी आने का कह दिया। थोड़ी देर बाद अब्बा भी घर पहुंच गए थे। वो मेरी पसंद की बेकरी की ढेरों चीजें उठा कर लाए थे। 4 साल बाद हमारे घर में खुशी के कह के गूंज रहे थे। सिर्फ मैं दुखी नहीं थी, बल्कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत दुखी थे। जब मुझे ये बात समझ में आ गई, सुबान मेरे साथ ही बैठा सोफे पर मुस्कुरा रहा था। मैंने प्रिंसिपल को मैसेज करके सुबह स्कूल आने का कह दिया, क्योंकि वो मुसलसल मुझे कॉल मैसेज करके स्कूल बुला रही थी कि टर्म कंप्लीट हो चुका है और अब इम्तिहानात की तैयारी करवानी है। रात को जब मैंने अलमारी खोली तो एक खूबसूरत लिबास देखकर हैरान रह गई, जिस पर नफीस कढ़ाई की गई थी। मैंने उलट पलट कर उसे देखने लगी। शायद अम्मा ने बनवा कर रखा हो। स्याह रंग का लिबास शुरू दिन से मेरी कमजोरी था। अचानक सुबान की आवाज गूंजी, क्यों पसंद नहीं आया तोहफा मेरी शहजादी को? अलमारी से टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर वही खूबसूरत मुस्कुराहट फैली थी जिसने मुझे उसका दीवाना कर दिया था। मैंने मुस्कुराकर सूट को अपने साथ लगाकर उससे कहा, मुझे तो बहुत पसंद आया, तुम बताओ ये मुझ पर अच्छा लगेगा? वो प्यार से बोला, ये बनाई तुम्हारे लिए है। हम दोनों मुस्कुराने लगे। अगली सुबह में बहुत एहतमाद से तैयार होकर सुबान का दिया गया मास्क चेहरे पर लगाकर कमरे से निकली। अम्मा मेरे नए कपड़े और मास्क देखकर बहुत खुश हुई और हैरान भी, और कहने लगी, बेटा ये तुमने कब बनवाए? माशाअल्लाह कितना प्यारा जोड़ा है। और ये क्या नकाब करके नहीं जाओगी? मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, सोचा कि रिजल्ट वाले दिन पहन कर जाऊंगी, लेकिन आज ही पहन लिया। उस रोज आप घर पर नहीं थी जब ये पहुंचा था तो, और अब मैं नकाब करके नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही तो? उन्होंने मेरा माथा चूम कर कहा, बेटा तुम मेरी शहजादी बेटी हो, हर हाल में तुम अच्छी लगती हो। जैसे तुम्हारी खुशी में उसमें खुश हूँ। मैंने मुस्कुराकर उन्हें खुदा हाफिज कहा। मेरी वैन आ चुकी थी
अम्मा के हाथ से अपना लंच बॉक्स लेकर मैं घर से निकल खड़ी हुई। मेरे हाथ में सुबान का हाथ था। जब मैं स्कूल पहुंची तो सभी टीचर्स मुझे इतने खूबसूरत लिबास और मास्क में देखकर हैरान रह गई। मैंने स्टाफ रूम में दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। अपना बैग चेयर पर रखकर मैं बाहर निकल गई। कुछ के चेहरे पर परेशानी थी, कुछ के चेहरे पर वही तंज था। मैं प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची तो उन्होंने बहुत खुशदिली से मुझे वेलकम किया और मुझसे मेरे काम के बारे में बातें करने लगी। सुबान दरवाजे में खड़ा हुआ मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं जानती थी कि अब किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो वो खुद मुसीबत को अपने सर पर लेगा। मेरे पुरएतमाद रवैये पर हर कोई अक्का बक्का था। नरगिस मुझे आंखें फाड़े देख रही थी और सोच रही थी कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो अपना चेहरा दिखाने से कतराती थी। अब मैं सबके सामने खुलेआम फिर रही थी, पर उसे क्या मालूम था कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे हिम्मत दी, जो हमेशा मेरे साथ ही रहता। वो बाकियों को तो नजर नहीं आता, पर हमेशा मेरे सामने मौजूद रहता है, मुझे हिम्मत और हौसला देता है। मेरी दोस्ती उससे बहुत पक्की हो गई थी। जब एक रोज मैंने उससे पूछा कि तुम इंसानों की बस्ती में क्या कर रहे हो, जब ही वो बोला, ये स्कूल दरअसल मेरे बाप शहंशाह जिन्नात का है। ये स्कूल बहुत पुराना है। इंसानों के बसने से पहले का ये स्कूल अब इंसानों के कब्जे में है, पर जैसे ही दोपहर के वक्त ये स्कूल बंद होता है तब शाम के वक्त हम जिन्नात स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि ये स्कूल उसका था। मुझे हैरानी हुई कि वो तो एक जिन्नजात है, फिर भी उसने इंसानों को तंग करने की कोई कोशिश नहीं की। जब कहने लगा कि तंग करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमसे बदगुमान हो जाए, पर मेरे जहन में अब भी वही सवाल आ रहा था कि आखिर सुबान को मेरा कैसे पता चला। मैं जब भी उसे ये सवाल पूछने की कोशिश करती वो हमेशा टाल देता, पर अब वो स्कूल में मुझ पर नजर रखता। मुझ में तो गोया हिम्मत आ गई थी। नरगिस अभी भी बाज नहीं आई। मुझे काफी अफसोस होता कि वो मेरी सहेली जो हमेशा मेरे साथ होती, मुझे हर मुश्किल में साथ देती, अब वो मुझसे मुंह फेर चुकी है। उसने अपनी शादी की दावत सबको दी थी, लेकिन मुझे उसने अपनी शादी पर नहीं बुलाया। हुरैन पढ़ाई के बाद दूसरे शहर चली गई। वो बार बार मिलने का पूछती तो मैं पुरजोश हो जाती, पर मैंने एक नजर आईने में अपने चेहरे को देखा, फिर सारा जोश खत्म हो गया। मैं भी उससे मिलने के लिए काफी बेताब थी। उसका कहना था कि मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती मजीद पक्की हो जाए। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ खटका लगा। मुझे डर था कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच ही न साबित हो जाए। मैंने एक बार फिर डर कर अपने जख्म को देखा, जब अचानक ही मेरी नजर खिड़की के पार गई, जहाँ सुबान टेक लगाए मुझे ही घूर रहा था। कहने लगा, तुम फिर से ज्यादा सोच रही हो ना, कहा भी है कि इतना मत सोचा करो, और तुम्हारी सहेली अगर तुमसे मिलना चाहती है तो एक दफा उससे मिल लो, क्या पता तुम्हारी बात बन जाए। मैंने जैसे ही उसकी बातें सुनी तो उसे टोक कर बोली, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब कुछ मालूम है। बताओ हुरैन मुझे मेरे पास क्यों आना चाहती है, और आखिर उसका इरादा क्या है। सुबान कहने लगा, दरअसल हुरैन चाहती है कि तुम उसकी भाभी बन जाओ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी शादी के ख्वाब तो कब के चकनाचूर हो गए थे। एक पल के लिए मैं फिर से माजी में खो गई। सुबान कहने लगा, देखो तुम बहुत गलत कर रही हो। उसका भाई अच्छा लड़का है, वो यकीनन सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगा, वो इस जख्म के साथ भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने सुना तो होगा कि चांद पर दाग भी होते हैं। तुम्हारे चांद से चेहरे पर भी एक छोटा सा दाग है, जो कि तुम्हारी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। तुम इस बात को कबूल क्यों नहीं करती। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि नहीं, अगर वो इस इरादे के साथ मुझसे मिलने वाली है तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। सुबान ने गहरा सांस खारिज किया। उसके लाख कहने के बावजूद मैंने हुरैन को टाल दिया कि मैं दूसरे शहर मुंतकिल हो गई हूँ और मेरी बहुत टफ जॉब है, जिसकी वजह से मैं उससे मिल नहीं सकती। किसी को भी नहीं पता था, पर सुबान मेरी मिन्नतें करता था। जब एक रोज अचानक ही मैंने हुरैन के भाई को सुबान के साथ देख लिया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे और काफी मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे।
शाहजेब मुस्कुरा रहा था, जबकि सुबान की आंखों की चमक देखकर मैं ठटक गई थी कि आखिर उनका इरादा क्या है। कुछ रोज बाद वो फिर से मुझसे मिला और मुझे समझाने लगा। मैंने फौरन से उसे कहा कि तुम शाहजेब से क्यों मिले हो? तुमने उसे मेरी सच्चाई क्यों बताई है? जब वो कहने लगा कि उसे तुम्हारी सच्चाई पहले से ही मालूम थी, वो जानता था कि वलीद ने तुम पर अटैक किया है। दरअसल बात यह है कि उसे मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है। वो भी जानता है कि मैं जिन्नज़ादा हूँ। ये सुनकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं डरते डरते उससे पूछने लगी, क्या शाहजेब फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है? जब मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, हाँ, वो तुम्हें अपनाना चाहता है। अब सिर्फ तुम्हारी तरफ से इकरार चाहिए। तुम जैसे ही राजी होगी वो रिश्ता लेकर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सुबान ने मुझे बहुत समझाया। आखिरकार मैंने हार मान ली और यूं कुछ ही रोज बाद हुरैन अपने भाई का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अम्मा अब्बा भी परेशान थे। अम्मा ने जैसे ही हुरैन से कहा कि हमारी बेटी थी तो बहुत खूबसूरत, पर उसके साथ एक बुरा हादसा पेश आया था, हुरैन कहने लगी, आंटी, मैं जानती हूँ ये मेरी सहेली है। किस्मत ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। आप लोगों ने भी बिना देखे इसका रिश्ता पक्का कर दिया। आप लोगों को भी छानबीन करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे भाई को कोई एतराज नहीं। मेरा भाई इसे कबूल करेगा। अम्मा ने ये सुना तो खुशी के आंसू बहाने लगी। यूं चंद पल बाद मेरा रिश्ता शाहजेब के साथ पक्का हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हुरैन ने हम दोनों को एक कमरे में बिठाया ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे जब अचानक ही मुझे सुबान सामने बैठा दिखाई दिया। कहने लगा कि इतनी घबराने की क्या जरूरत है? तुम कौन सा उससे पहली दफा मिल रही हो? फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरा गहरा दोस्त है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? उसकी बातें सुनकर मैंने खुद को कंपोज किया। कुछ देर बाद शाहजेब अंदर आया। हम दोनों के बीच काफी मुख्तसर सी बात हुई। शाहजेब बहुत मुस्कुरा रहा था। मैं जान गई थी कि वो दिल से मुझे चाहता है, बल्कि उसने तो मुझे ये भी तसल्ली दी कि आपका ये दाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यूं चंद दिन बाद ही मेरी शादी की तारीख रखी गई। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अब मैं स्कूल जाती तो मेरे ज़हन में शाहजेब भी सवार रहता। मेरा चेहरा खुद ब खुद निखरने लगा। हर कोई मुझे शर्माता देखता तो ये सवाल करता कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? कौन सा तुम्हारा रिश्ता आना है? इस दाग के साथ कौन तुम्हें कबूल करेगा? सबकी बातें सुनकर मेरी आंखें चमकने लगती। मैं खुद पर और भी मुझे यकीन आ जाता कि ऐसा तो सच में हो चुका है। जब एक रोज अचानक ही नरगिस मुझे बहुत परेशान दिखी। उसके इर्द गिर्द सारे टीचर्स ने उसे घेरा डाला हुआ था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं उसे दिलासा देना चाहती थी। मैं ये भी जानती थी कि उसे क्या हुआ है, लेकिन नरगिस का वो रवैया याद करके मैं पीछे हट गई। फिर कुछ देर बाद मुझे किसी लड़की ने बताया कि इसकी शादी टूट गई है। ये खबर सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे उस पर बहुत तरस आया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिल किया था कि मैं उसके पास जाऊं, उसके दर्द का हिस्सा बनूं। अभी भी मैं यही सोच रही थी और स्कूल के पुराने बेंच पर बैठी थी जब अचानक ही सुबान मेरे साथ आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम जो सोच रही हो वो ठीक तो है, लेकिन मुझे लगता है नरगिस के साथ अच्छा हुआ। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से कहने लगी कि तुम ये इसलिए बोल रही हो ना कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो नफी में सर हिलाने लगा और कहने लगा, नहीं, दरअसल वो शख्सी बुरा इंसान था। वो नशेई था। नरगिस को ये नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ कि नरगिस पहले ही उससे अलग हो गई, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पती रहती। उसकी जिंदगी अजाब बन जाती। अगर तुम चाहो तो अब उसके पास जा सकती हो। तुम ये मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया। क्या पता तुम्हारा उसकी तरफ रुजू करना उसे अच्छा लगे और यूं उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो फौरन ही वहां से उठ गई और नरगिस को तलाश करने लगी। मुझे वॉशरूम में दिखाई दी। मुझे देखकर उसने अपनी नजरें चुरा ली।
जब मैंने उसका रास्ता रोका, अभी मैंने उसका रास्ता रोका ही था जब वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो महानूर, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं कितनी बुरी हूँ, मेरे साथ बुरा ही हुआ है, काश मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ना किया होता, मैंने भी बाकी टीचर्स के साथ तुम्हें ठुकरा दिया और तुम्हारा मजाक उड़ाया, जबकि मैं तो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वो हिचकियां लेकर रो रही थी। जब मैंने उसे हौसला दिया और उसे कहा कि मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो शख्स ही बुरा था, तुम मुझसे अलग हो गई, ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। यूं मेरी नरगिस के साथ फिर से दोस्ती हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी किस्मत में जो खुशियां आई थी उनसे मेरे चेहरे पर जो निखार आया था उसकी वजह से तो मेरा दाग भी छुप गया था। अब तो मैं मास्क भी नहीं लगाती थी, बल्कि अब मेरा दाग बिल्कुल ही मध्यम हो गया था। शाहजेब से मैं वक्तन फक्तन बात भी करती, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। 1 महीने बाद हमारी शादी की तकरीब रखी गई। मेरी मेहंदी का फंक्शन था जो कि सुबान ने अपनी निगरानी में ही अरेंज किया था। मैंने अम्मा अब्बा को सुबान का बता दिया कि वो शाहजेब का बहुत अच्छा और गहरा दोस्त था। उसने हमारी शादी के सारे फंक्शन का बंदोबस्त अपने जिम्मे लिया था। हमारी मेहंदी एक बहुत बड़े फार्म हाउस में मुनक्किद हुई थी जो कि शहर से बहुत दूर था। अपनी मेहंदी के फंक्शन में अचानक ही मेरी नजर एक पुरस्कार शख्स पर पड़ी जिसने एक काली चादर से खुद को ढांपा हुआ था। बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। न जाने क्यों मैं जब उसकी आंखों में झांकती तो मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता। मैं अपने स्टेज में बैठी थी, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी, पर जब भी मेरी नजर दूर उस शख्स पर जाती तो मेरा दिल खौफ से कांप जाता कि वो शख्स कौन था। मुझे तो सुबान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। जब हुरैन मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या इस फंक्शन में बाहर से भी किसी को इनवाइट किया है या फिर सिर्फ अपने ही लोग हैं। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हारी स्कूल टीचर्स के अलावा तो कोई भी नहीं इनवाइट, मैं तो बस तुम्हारी दोस्त नरगिस का इंतजार कर रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। उसकी बातें में सुनकर अजीब सी उलझन का शिकार हो गई। अगर वो सच कह रही थी तो फिर वो मशकूक शख्स कौन है, मुझे खुद ही पता लगाना था। सुबान तो मेरी सारी अरेंजमेंट करवा रहा था। मैं भी उसी उलझन में थी जब शाहजेब मेरे साथ आकर बैठ गया। मेरी तारीफ करने लगा कि तुम बहुत हसीन लग रही हो। वो शायद मेरी तवज्जो इधर से उधर हटाना चाहता था जब अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी गन का निशाना मुझ पर हो। ये देखकर तो मैं ठटक गई। मैं वहां से झट से उठी और शाहजेब से कहा कि मैं पानी पी कर आती हूँ। अब मैं सुबान को हर तरफ तलाश करने लगी। जैसे ही मैंने उसको पुकारा तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, मानूर क्या हो गया है, तुम इतनी घबराई क्यों हो? मैंने उससे कहा, मुझे लग रहा है जैसे कोई खतरा हो। इस फार्म हाउस में कोई मौजूद है जो बहुत मशकूक है। मैंने ऐसा महसूस किया है जैसे किसी ने मुझ पर निशाना ताना हो। ये बात सुनकर वो चौंक गया था, फिर अपनी नाक सकेड़कर यहाँ वहां महसूस करने लगा। अगले ही पल उसने मुझे बाजू से धकेला और सरगोशी करने लगा कि चलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने कांपते हुए सुबान से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भला स्टेज छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। जब अगले ही पल उसने मुझे ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे कहा कि वलीद इस फंक्शन में मौजूद है, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। उसकी बात सुनकर मेरा वजूद साकित हो गया था। उसने मेरा हाथ थामा, मुझसे कहने लगा, अपनी आंखें बंद करो। मैंने जैसे ही आंखें बंद की उसके बाद ही मेरा वजूद हवा में मुअल्लिक हो गया। कुछ देर में मैं एक अंधेरी जगह पर मौजूद थी। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया था। कुछ ही देर बाद मैं किसी वजूद से टकराई तो वो आवाज तो शाहजेब की थी। मैं जान गई थी कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। न जाने ये कौन सी जगह थी, पर ये उसी फार्म हाउस के करीब ही थी, क्योंकि अब वहां से फायरिंग की आवाज आ रही थी।
जिसके साथ ही मुझे अम्मा, अब्बा और बहनों की याद सताने लगी। ना जाने उन सब का क्या हुआ होगा। शाहजेब मुझे तसल्ली देने लगा कि देखो, सुबान सबको संभाल लेगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों उसी जगह में थे जब अचानक और भी बहुत से लोग वहां पर आने लगे। कुछ देर बाद मुझे अम्मा अब्बा की आवाज आई तो मेरी जान में जान आई कि हम सब महफूज हैं। कुछ देर बाद ही सुबान भी वहां पर आ गया। वो गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि अब सब कुछ सेट है, अब हमें किसी से भी खतरा नहीं है। अम्मा अब्बा भी पूछने लगे कि आखिर खतरा किससे था। सुबान ने सारी बात बता दी थी। यूं फंक्शन दोबारा से स्टार्ट हो गया। मेरा निकाह शाहजेब से हो गया था। सुबान बहुत ज्यादा खुश था। हम दोनों को खुश देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हमें हम दोनों को तोहफा दिया जो कि एक तस्वीर थी। मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो तस्वीर उस पल की थी जब मैं पहली दफा शाहजेब से मिली थी और उसने उस बारिश में मुझे लिफ्ट दी थी। मुझे शाहजेब ने बताया था कि सुबान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये एक जिनज़ादा है। यूं हम लोग बिजनेस पार्टनर बन गए जब उसने मुझे सच्चाई बताई। पर उस सच्चाई को जानने के बाद तो हमारे बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वो मुझे हमेशा यही कहता कि तुम शादी कब करोगे। जब एक रोज उसने मुझे एक लड़की का बताया, फिर कहने लगा वो लड़की लाखों में एक है, लेकिन उसके साथ एक मसला है। उसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी। जैसे ही उससे नाम पूछा तो ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि सच में वो लड़की तुम ही होगी। मुझे वलीद पर काफी गुस्सा आया था। मैं जान गया था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उस रोज अगर मैं वलीद को ना पीटता तो वो तुम्हारे साथ ये सब ना करता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारी हालत का जिम्मेदार मैं भी था। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने सुबान से सारी बात कही कि दरअसल महानूर मेरी दोस्त की बहन है। मैंने सुबान को कहा था कि वो तुम पर नजर रखे और तुम्हारी हर तरीके से मदद करे ताकि उसे तुम्हारा सहारा मिले और हिम्मत और हौसले से वो सबकी बातों और लोगों की बदतमीजियों का मुकाबला कर सके। यूं वो मुझे एक एक रिपोर्ट देता था, पर बदले में उसने मुझसे वादा लिया था कि तुम उस लड़की से शादी करोगे। मैंने उसकी बात मान ली, पर मैंने ये भी कहा था कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी तो मैं आराम से पीछे हट जाऊंगा। मैं उसे किसी भी किस्म का फोर्स नहीं करना चाहता। मैंने जैसे ही शाहजेब की बातें सुनी तो मुझे मालूम हो गया कि दरअसल सुबान को मुझसे मिलवाने में शाहजेब का याद था। मुझे शाहजेब ने यह भी बताया कि फार्म हाउस में सुबान ने हम सबको महफूज जगह पर पहुंचाया था, जबकि वो खुद वलीद से निपटा था और उसने वलीद को ऐसा सबक सिखाया कि आज के बाद वो किसी लड़की के साथ गलत करने का सोचेगा भी नहीं। वलीद जिंदा तो है, लेकिन वो एक एक पल उस अजियत को याद करेगा जो उसने तुम्हें दी है, क्योंकि अब वो खुद ही अजियत से दो चार है।